हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सपना आहूजा, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स, और इसके पहले भी मैंने आपको 2 लेक्चर सेंड किए। इट इज द बेसिक्स ऑफ योर सेट थ्योरी। ये बेसिक है आपके सेट थ्योरी का, तो उस बेसिक को एक बार फिर से हम लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, सो दैट जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो और भी स्ट्रांग हो जाए। सेकेंड थिंग इज दैट 10 CBSE में सेट चैप्टर नहीं था, ना 9th में था, लेकिन 9th स्टेट में सेट थ्योरी था। जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उनको पता होगा सेट थ्योरी क्या होता है, लेकिन CBSE वाले जो हैं बच्चे, दे आर डोंट नो अबाउट द सेट थ्योरी। देयरफॉर मैंने क्या किया, आपको 2 बेसिक लेक्चर्स भेजे। अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेट्स। नाउ व्हाट इज द सेट्स? Set is the well-defined collection of the objects which are well-defined, which is universally accepted. For example, the number of students in the class 9th, days in a week, set of vowels in the English alphabets, set of colors in the rainbow. So they showing the same property. Same property दिखा रहे हैं वो के सेम कलर्स इन द रेनबो, वीक के डेज, द नेम ऑफ मंथ्स, द सेट ऑफ मंथ्स इन द इंग्लिश कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर. Okay, so these are the examples of sets which are defined. So there are 3 types to represent the sets. You are known very well. That first is descriptive, roster form, set builder form. Okay, so start करेंगे. Sets. Now first you must have to write the definition of sets. So what is the definition of set? तो set की definition आपको लिखनी है. Set is what? Set is the collection of well-defined objects. Objects in the set is called member. ये आपको लिखना है. The sets is denoted by only capital letters A, B, C and the elements in the set. जो set के elements होंगे वो हम small letters से, मतलब X, Y, Z, A, B, C, by any small letter we can denote the elements of set. If X is the element of set, here I write one of the set. Let example, let A is equals to A, E, I, O, U. A, E, I, O, U is a set of English vowels in the English alphabet. So if this E here, E is the element of set A, E is the element of set A. It means E जो है वो set A में है. E जो है वो set A में है. Therefore we denote as E belongs to A. E belongs to A. E belongs. The sign indicate belongs. I belongs to Ahuja family. Belongs से relate करता है. E belongs to A. But if I take X, so X belong करता है क्या? नहीं. So this is does not belongs to, because X is not element of set A. X is not element of set A. Therefore we can say that X is not belongs to set A. X is not belongs to set A. Got it? So write the example in your notes, or otherwise you can write
If x is an element, if x is an element of set A, then we write x belongs to A and read as x belongs to A. The example is given in the notes. If x is not belongs to set A, then we write x is not belongs to, read as x is not belongs to A. I explain here. As we can say that the 0 is belongs to whole number, but 0 is does not belongs to natural number. In this way, this is the example, universally accepted example. This is what whole number ko belongs, 0 is belongs to whole number, but 0 is not belongs to natural number. Now what is the roster form representation of sets? Next heading number 2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. तो फर्स्ट है आपका रोस्टर फॉर्म. व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म? व्हेन वी राइट द सेट in the form of curly bracket, in curly bracket and separated the elements by commas, then it is the representation of roster form. तो रोस्टर फॉर्म की भी डेफिनेशन आप लिखेंगे और उसका एक एग्जाम्पल भी लिखेंगे. B is a set of all days in a week. So B is equals to Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. This is the example. Now here also we discussed the one example in the previous section. यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिए थे, इस एग्जाम्पल को भी आप लिख सकते हैं. Now next method of representation of is set builder method. Now what is the set builder method? The set builder method, we describe the elements by specifying its property. In this set, we specify the property of that space set and also represent which of the number, जो number, कौन सा number, the numbers given in the set belongs to which of the set. It is natural, real, rational and inner. जो आपको एलिमेंट्स दिए वो किसे बिलोंग करते हैं, वो कहाँ से कहाँ, किस इंटरवल से किस इंटरवल तक बिलोंग करते हैं. ऑल्सो वी राइट इन डिटेल. सो इट इज द सेट बिल्डर फॉर्म. नंबर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में 1 और ये 2. The set builder method will describe the elements of the set by specifying the property which determines the element of the set uniquely. Now here Y is the month, set of months of the year. So we can write Y is the set. X जो elements है उसको हम X से represent कर रहे हैं, X such that X is month of years. इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख के दिखा रही हूँ. आज हमें सेट बिल्डर फॉर्म ही सीखना है, ठीक है. Now set builder form. Now here जो एग्जाम्पल दिए हैं दो, तो ये जो है ये डिस्क्रिप्टिव है पूरे, इसमें डिस्क्राइब किया गया है. इसके लिए हम यहाँ पे लिमिट्स वगैरह कुछ नहीं लिख रहे हैं. बट सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जैसे मैंने एक सेट ले लिया, सम एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेंगे. एग्जाम्पल 1, A is equals to 1, 4, 9, 16, 25, 36 and 49. Now if we have to write this set in set builder form, तो हम लिखेंगे x such that x ऐसा एलिमेंट है, x 1 से 49 तक है, x ऐसा एलिमेंट है, x such that x क्या प्रॉपर्टी डिनोट कर रहा है, तो वो स्क्वायर है, नंबर. उसके बाद आपको उसके डिफाइन करना है, उसको डेफिनेशन लिखना है कि x क्या है, वो नंबर्स का स्क्वायर है. किस नंबर्स का स्क्वायर है, तो वो नंबर्स कौन से हैं, वो नंबर्स नेचुरल नंबर हैं. वो क्या है, नेचुरल नंबर है. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. कहाँ से कहाँ तक हैं, तो वो 1 से लेके 7 तक है. दिस इक्वल्स टू साइन इंडिकेट्स, ये वाला साइन, ये जो साइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जिसे मैंने अभी येलोइश किया,
दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू का साइन है। लेस देन और इक्वल्स टू मीन्स 1 and 7 आर इंक्लूडेड। इसे भी हम पढ़ेंगे आगे, आगे हम इसे भी पढ़ने वाले हैं। होता क्या है, इफ बी लिखा मैंने 2 3 5 7 11 13 17 19। क्या है बी सेट में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, तो b इज इक्वल्स टू x लिख सकते हैं आप, y लिख सकते हैं x इज अ प्राइम नंबर्स। कोई फॉर्मूला बनेगा क्या इसका, दीज आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हैं, कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। और आपका जो x है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 20। तो 1 और 20 के बीच के जो प्राइम नंबर्स है वो है आपका सेट B। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। अब फिर से लिखेंगे y such that, x भी लिख सकते हैं y भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा y such that। अगर फॉर्मूला बन रहा है तो पहले फॉर्मूला बनाएंगे, तो y इज इक्वल टू ऊपर है 1 और नीचे उसमें प्लस किया है 1, तो फॉर्मूला बन रहा है ऊपर है n और नीचे है n+1। ऊपर 1 नीचे 2, इट मीन्स n है ऊपर 1 और नीचे है n+1। बट ये n किसे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। ये n कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेके कहाँ तक है, 5 तक है, 1 से लेके 5 तक है। अगर आप इस फॉर्मूला में, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है, इस फॉर्मूला में आप अगर 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको ऊपर की फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगी, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगी। तो ऐसे रिस्पेक्टेड टर्म्स आपको यहाँ पर मिलते जाएंगे। ओके गाइस, आगे चलते हैं। डी 1 8 27 64 125 125 कैसे हैं, क्यूब है। किसके क्यूब है, तो D x such that x is n क्यूब। फॉर्मूला क्या बनेगा, n क्यूब। अब आपका n कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन n कहाँ से है, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू n इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इन सब का जब क्यूब करेंगे तो हमें डी सेट मिलेगा। ओके गाइस, ई क्या लिखा है मैंने, पूरे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स तो लिखेंगे ई वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2n। 2n फॉर्मूला क्या बनेगा इवन नंबर का, 2n। तो n किसे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को। अब n कहाँ से कहाँ है, तो 1 से 10 तक। अगर हम ये वाला 1 से 10 इसमें पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म, ऐसे हमें यहाँ पे टर्म्स मिलते जाएगी। नाउ f कैसे नंबर्स है, मैंने क्या नंबर्स लिखे, रियल नंबर लाइन के नंबर्स लिखे हैं, है ना। तो अब इसे आप कैसे करेंगे, f x सच दैट x बिलोंग्स टू, रियल नंबर भी लिख सकते हैं आप, इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है।
ठीक है, इसको दो तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। और नंबर कहाँ से कहाँ है, अभी आपने n नहीं लिखा है ना, तो -3 इज लेस देन और इक्वल्स टू x और इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। इट मीन्स आपके नंबर कहाँ से कहाँ है, -3 से 3 तक है। सेकेंड, आप इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n, x इज इक्वल्स टू n where n belongs to रियल नंबर। और आपके रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो -3 से 3 तक है। और एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, 1 3 5 7 9 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं z को यूज करी हूँ, z इज इक्वल्स टू 2n+1। ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है 2n+1, 2n-1। दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैंने 2n+1 लिया, n की वैल्यू मैंने 1 डाली, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, है ना, 2 + 1 हो जाएगा 3। इसके लिए मैं क्या करूंगी, अब 2n+1 पहला आ रहा है 3, मतलब मुझे सबसे पहले मैं 0 डालूंगी, 2 × 0 + 1 तो मुझे 1 मिलेगा। मतलब मुझे पहला एलिमेंट 0 डालना पड़ेगा, तब जाके मुझे 1 मिलेगा। तो n किसे बिलोंग करेगा, होल नंबर को। कहाँ से कहाँ, 0 से n इज लेस देन और इक्वल्स टू 4 डालेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 लास्ट टर्म हमें 4 पुट करनी पड़ेगी n की वैल्यू, तो आपको 9 मिल जाएगा। इससे ही अगर मुझे होल नंबर से नहीं, मुझे नेचुरल नंबर से करना है, तो z इज इक्वल्स टू 2n-1 लिखूंगी मैं। अब 2 n की वैल्यू डालूंगी 1 तो मिल जाएगा 1, 2 डालूंगी तो मिल जाएगा 2, 3 डालूंगी तो मिल जाएगा 5, 4 डालूंगी तो मिल जाएगा 7 और 5 डालूंगी तो मिल जाएगा 8। तो अगर इसको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अगर मैंने होल नंबर्स को लिया तो 0 से लूंगी, 0 से 4, और अगर मैंने नेचुरल नंबर से लिया तो मैं लूंगी 1 से 5, और ये फॉर्मूला जो भी है वो भी आपका चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला भी आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स। आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब मैंने 2 से नंबर्स ले लिए हैं, तो हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल्स टू n+1, +1 कर लिया मैंने। आपका n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैसे कि आपने n की वैल्यू 1 डाले तो आपको 2 मिला, 2 डाले तो 3 मिला, 3 डाले तो 4 मिला, 9 डालोगे n की वैल्यू तो 10 मिल रहा है। तो पहले फॉर्मूला किसे बिलोंग करता है और उसके बाद में उसकी लिमिट्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको लिख लेंगे, और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लेंगे मेरे से। दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके गाइस, सो वेन डायग्राम। अब एक सेट को अगर मुझे वेन डायग्राम फॉर्म में लिखना है, डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखना है, वेन डायग्राम इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। वेन डायग्राम इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सो अगर मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम, कोई भी सेट अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये H सेट रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ H लिखूंगी। दिस इज द H सेट, 2 3 2
3 4 5 6 7 8 9. This is the representation. We can draw the circle or triangle or square. Any shape हम दे सकते हैं, कोई भी शेप. जैसे ऊपर वाला G सेट अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, so I use the triangle here G. 1 3 5 7 9. This is the representation of Venn diagram. Now if the element are repeated, then हमको एक ही बार उसे लिखना होता है. अगर आपके सेट में दो बार A है तो आपको वेन डायग्राम में उसे एक ही बार लिखना होता है. सो दीज आर द MCQs. ये MCQs में आ सकता है, तो आप नोट में अपने कॉपी में लिखेंगे. नोट 1 एलिमेंट्स आर रिपीटेड. Write them once. While listening the element of the set, the order in which the element are listed is inertial. तो आपकी ऑर्डर जो है वो inertial रह सकती है, रैंडम रह सकती है. ठीक है. और उसके बाद हमें देखना है ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल्स देखना है. तो इंटरवल्स मतलब क्या होता है? सो इंटरवल्स जो मैंने अभी आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाया, लेस देन इक्वल्स टू सिखाया, तो ये कैसे आया? तो ये सब चीजें डिस्क्राइब की है इंटरवल्स में, कि आप स्ट्रिक्टली लिखेंगे तो नंबर कहाँ से आएगा, आप लेस देन इक्वल्स टू लिखेंगे तो आपको नंबर कहाँ से लिखना है. सो ओपन इंटरवल. लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर. आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. आपको पूरी डेफिनेशंस यहाँ से लिखनी है. R is the set of real numbers and in which A is less than B. A ये छोटा है B से. Then the set, आप कैसे लिखेंगे? सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? X such that X belongs to R. X is strictly less than A is less than X is less than B is the open interval and it is denoted by in the round bracket. All the members are A and B belongs to the open interval AB, but AB themselves do not belong to this interval. अब ये है क्या मांजरा पूरा? चलो आओ देखेंगे. So next point is that open interval. Suppose पहले डेफिनेशन फॉर्म लिखेंगे. ए बी जो है, ए बी, ए एंड बी आर बिलोंग्स टू आर इन विच ए इज लेस देन बी. तो स्ट्रिक्टली साइन ओपन इंटरवल के लिए यूज किया जाता है. स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली साइन ओपन इंटरवल के लिए यूज किया जाता है, जिसमें ए से बी तक के एलिमेंट्स हैं. कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स हैं? ए से बी तक के एलिमेंट्स हैं. इसको अगर हमें सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो R इज इक्वल्स टू X सच दैट आपके पास ए बी है जो कि बिलोंग करता है R को, और A से X तक आपके एलिमेंट्स है, A से B तक आपके एलिमेंट्स हैं, जिसमें A एंड B आर नॉट इंक्लूडेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 5, ये मेरे पास नंबर्स है. अब मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो A इज इक्वल्स टू X सच दैट X कैसे है? नंबर्स है, बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ये मैं लिख रही हूँ X बिलोंग्स टू रियल नंबर. नंबर कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको लिखना पड़ेगा 0 स्ट्रिक्टली लेस देन X इज स्ट्रिक्टली लेस देन 6. 6 क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि 0 और 6 के बीच के नंबर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स आएंगे आपके. स्ट्रिक्टली जब साइन आएगा तो आपको 0 और 6 जो है वो आपका इंक्लूड नहीं होगा. और अगर मुझे इसे इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगी 0 6 बिलोंग्स टू R. इंटरवल मतलब 0 से 6 तक बिलोंग्स टू R, ऐसा हमारा सेट है 0 से 6 तक.
लेकिन 0 और 6 नहीं, उनके बीच के एलिमेंट्स। और अगर ग्राफिकली हमें इसे डिनोट करना है ऑन द नंबर लाइन, सो R यहाँ पर आ जाएगा आपका X, A आपका छोटा है, B बड़ा है, तो यहाँ पर आप ऐसा सर्कल बनाएंगे खाली वाला, इसको फील नहीं करना है। दिस hollow circle indicates A and B is not included. This curly bracket or this round bracket is also indicates what A and B is not included. So what is the sign? क्या क्या साइन है? सबसे पहले स्ट्रिक्टली साइन आपको यूज करना है, उसके बाद ए बी आपका जो है वो सर्कल में रहेगा। नेक्स्ट ए और बी अगर ग्राफिकली रियल नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो सर्कल है, ठीक है। अब ऐसा ही हम देखेंगे क्लोज इंटरवल। अब इसी ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं क्लोज इंटरवल में डिनोट करती हूँ। हाउ टू एक्सप्रेस द अबव एग्जाम्पल इन क्लोज इंटरवल, सो वी कैन राइट हियर ए बी बिलोंग्स टू आर इन विच ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। नाउ व्हाट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी, जब बॉक्स में इसे लिखेंगे तो दिस बॉक्स रिप्रेजेंट क्लोज्ड, लेस देन और इक्वल्स टू, इट मीन्स ए एंड बी इज इंक्लूडेड। ए और बी क्या है आपके? इंक्लूडेड हैं। सो आर एक्स सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर बट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। जो मैंने ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं वो क्लोज्ड फॉर्म में बताए हैं। अगर मैं उनको ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो उनकी जो लिमिट है वो एक एक नंबर आगे सरक जाएगी, ठीक है, और कोई फर्क नहीं आएगा उसमें ना। R इज इक्वल्स टू, एक एग्जाम्पल ले लेंगे सेम ऊपर वाला ही कि A आपका 1 2 3 4 5 था, इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सो X सच दैट X बिलोंग्स टू R, X क्या है आपका? बिलोंग्स टू R है। आपके नंबर्स कहाँ से कहाँ हैं? 1 इज लेस देन, X is less than or equals to 5. So here 1 and 5 is included. ये जो equals to का साइन आता है less than or equals to, it means 1 and 5 is included. 1 और 5 दोनों included है। ऊपर 1 और 5 से लिखते तो 1 और 5 इंक्लूड नहीं होता तो बीच के 3 नंबर ही बच जाते। इसके लिए हमें क्या करना था? थोड़ा बाहर सरक के लिमिट्स लेनी थी, 0 6 के बीच के नंबर्स। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ ओपन इंटरवल। नाउ अगर इसको मुझे इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो बॉक्स यूज करेंगे। 1 5 बिलोंग्स टू R, बॉक्स इज रिप्रेजेंट 1 and 5 बोथ आर इंक्लूडेड। हियर A and B are included, A and B are included। और इसे अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो A X B। अब यहां पर जो सर्कल है वो आएगा क्लोज्ड, दिस इज द क्लोज्ड। अब यहाँ हॉलो नहीं रहेगा, आपको उसको फील करना है। फील मीन्स A and B is included, hollow means A and B is not included, round bracket open, box closed, strictly open, less than or equals to closed। ठीक है गाइस, तो इतना आप नोट कर लेंगे विथ एग्जाम्पल। पहले डेफिनेशन लिखना और फिर जो मैंने लिख कर दिया है उसे आपको लिखना, ठीक है। डेफिनेशंस मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन सी लिखनी है, बाकी हम देखेंगे कल के लेक्चर में। तो पूरा इंटरवल्स से आपको लिखना है यहाँ तक, ओके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।